السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، آج 5 اگست ہے، وہ دن جسے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم استحصال کشمیر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ 7 برس پہلے 5 اگست 2019 کو بھارت نے اپنی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت یک طرفہ طور پر ختم کر دی۔ ریاست کو 2 وفاقی علاقوں میں تقسیم کر دیا اور ایک ایسا فیصلہ نافذ کیا جسے پاکستان، کشمیری قیادت اور متعدد بین الاقوامی مبصرین نے متنازع قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ صرف 2019 سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے اس کا بالکل نہیں۔ کشمیر کی داستان تو 1947 سے لہو میں لکھی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1948 اور 1949 میں متعدد قراردادوں کے ذریعے واضح کر دیا کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزاد اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے ہونا چاہیے، مگر آج تقریباً 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود وہ وعدہ ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ گزشتہ برسوں میں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو، انٹرنیٹ کی طویل ترین بندشوں، ہزاروں گرفتاریوں، سیاسی رہنماؤں کی نظر بندی، میڈیا پر سخت پابندیوں اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی جیسی خبریں عالمی توجہ کا مرکز بنتی رہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے 2018 اور 2019 کی رپورٹس میں طاقت کے استعمال، پیلٹ گن سے شہریوں خصوصاً نوجوانوں کی بینائی متاثر ہونے، ماورائے قانون اختیارات اور احتساب کے فقدان پر سنگین خدشات ظاہر کیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر ادارے بھی اظہار رائے، صحافت اور شہری آزادیوں پر عائد پابندیوں پر بار بار تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف بھی ابتدا سے واضح ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے جس کا حتمی فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ پاکستان ہر سال یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز، انسانی زنجیریں اور عالمی سفارتی مہم چلاتا ہے تاکہ دنیا کو یاد دلایا جا سکے کہ کشمیر صرف ایک سرحدی تنازع نہیں بلکہ انسانی حقوق کا مسئلہ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں نافذ نہ ہوں، اگر انسانی حقوق کی رپورٹ صرف فائلوں میں دفن رہ جائیں، اگر طاقت ہی قانون بن جائے تو پھر عالمی انصاف کا معیار کیا ہے؟ کیا کشمیریوں کی نسلیں صرف انتظار ہی کرتی رہیں گی؟ کیا دنیا کے ضمیر کی بیداری کے لیے مزید کتنی قربانیاں درکار ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم 5 اگست 2019 کے فیصلے کا تاریخی، قانونی، سیاسی اور انسانی جائزہ لیں گے۔ بات کریں گے اقوام متحدہ کی قراردادوں، عالمی انسانی حقوق کی رپورٹس، پاکستان کی سفارتی کاوشوں، کشمیری عوام کے مطالبات اور اس سوال کی کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا راستہ آخر کشمیر سے ہو کر کیوں گزرتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس پوری ڈسکشن کے لیے پینل میرے ساتھ موجود ہے۔ اپنے پینل کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ڈیفنس اینالسٹ، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین جوانان پاکستان، اور نصیر واگا صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ آغاز میں کس سے کروں گی؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے جوائن کر لیا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کا دن یقیناً پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے بہت اہمیت حاصل کرتا ہے، بہت اہمیت کا حامل بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2019 میں بھارت نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تب سے لے کر اب تک وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو بھارت کرنا چاہتا تھا، اور وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ان سالوں میں ہو چکی ہیں جن کو اب مزید ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے اور یہیں پہ انہیں سٹاپ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، بھارت نے 5 اگست 2019 کو بھی آل نو کے بعد کیسے یونیلیٹری ایک یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے کہ کشمیر ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اور یہ پاکستان یونائٹڈ نیشن نہیں گیا۔ جواہر لال نہرو 1948 میں بھاگتا روتا پیٹتا بھاگا تھا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پاکستان میں مسلح افواج میں پہنچ گئی ہیں اور ہم تیار ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت دیں گے، اس کو کشمیر میں جنگ بندی کروا دیں، اور ہم جس طرح سلامتی کونسل کہے گی ہم اس کے مطابق یہاں پر پلیبسائٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے ملٹری آبزرورز گروپ لائن آف کنٹرول کے اوپر تعینات جب سے لے کے آج تک ہیں۔ دیٹ مین کہ یونائٹڈ نیشن اینڈ دا ورلڈ ریکگنائز یہ انلیگلی انڈین ہیلڈ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور پاکستان میں وہ ملٹری آبزرور کہیں بھی جا سکتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے، لیکن انڈیا میں وہ سری نگر سے آگے نہیں آئے۔ پھر ظاہر ہے کہ 5 جب جس طریقے سے یہ ظلم و بربریت کرتا رہا، وہاں پر پیلٹس کا
बुरहान वानी के बाद 2016 के बाद देखें जो जुल्म बर्बरीत किया, पैलेट कम डायरेक्ट उनको ब्लाइंड कर दिया बच्चों को, उसके बाद डायरेक्ट फायरिंग की है, औरतों बच्चों बूढ़ों को जुल्म, 10 लाख फौज रखी हुई है, हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक भारतीय फौजी तैनात है, सब लिविंग बट देन यूनिटली सडनली 5 अगस्त 2019 को इसने टेरिटरी में शामिल कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या उसके बाद जनरल असम्बली हो या पाकिस्तान में हम बात करें इस्लामिक ओआईसी में बात करें, एवरीवेयर, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज से कि हम कश्मीर की आवाज़ हैं जी, और कश्मीरी अवाम जो है वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं टू एन एक्सटेंड कि जब भी उनका कोई कश्मीरी औरत बूढ़ा बच्चा जवान शहीद होता है तो वो उसको पाकिस्तान के झंडे में शहीद के दफन करते हैं। अली गिलानी साहब ने खुद कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और हम हर वक्त इखलाकी सफारती सियासी तौर पर हर वक्त उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और यही कश्मीर मार के हक में दुनिया को पता चल गया, इसीलिए हमने कहा कि मैं साले की तैयारों में देखा कि 2 न्यूक्लियर पावर लड़ाई के बिल्कुल उस स्टेज पे थिंग इट कुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वेरी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। और यहाँ हाईलाइट हुआ कि कश्मीर जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दुनिया को हाईलाइट हुआ एंड नाउ वर्ल्ड इज वरिड एक्चुअली कि इसको रिजॉल्व होना चाहिए ताकि यहाँ पर अमन हो। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था कि दुनिया जो है वो यहाँ पे इस नहज पर पाकिस्तान दुनिया को पहुँचा दे कि दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये वाकई एक मसला है और यहाँ पे वाकई वायलेशन हो रही है और इस मसले को अब हल होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी जिस जंग से वो गुजर रहे हैं उसके बाद वो मसला कश्मीर की तरफ भी सोचेंगे। खैर इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन होगा या नहीं। अभी अब्दुल्ला साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब, यही सवाल आपके सामने, यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, पाकिस्तान अपनी भरपूर यकजहती का इजहार कर रहा है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, लेकिन सर 7 बरस बाद कश्मीर कहाँ पे स्टैंड करता हुआ आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब को, नसीम साहब को, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इस 7 साल के अंदर क्या हुआ, मेरे ख्याल में एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत भारत ने एक वार करने की कोशिश की। उस टाइम पे भारत स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भी, फाइनेंशियली तौर पर, इसी तरीके से डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली और मिलिटरीली तौर पर एक बहुत बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता था। और भारत ने अपने ताल्लुकात का अमेरिका के साथ, दीगर ममालिक के साथ उनका भरपूर फायदा उठाते हुए वहाँ आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि आलमी दुनिया ने जो रिएक्शन दिखाना था वो नहीं दिया, हद तक के जब G7 कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको भी मकबूजा कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंटरनेशनली, जिसका भी ब्रिगेड साहब ने जिक्र किया, करारदादें मौजूद हैं, 1.5 दर्जन करारदादें मौजूद हैं, जिसके अंदर दुनिया ने ये बात तस्लीम की कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ लोगों को हक खुदइरादियत मिलना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 4A के मुताबिक जो कौमें अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाती हैं वो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते हैं, ना कि टेररिस्ट कहलाते हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो भारत को जो जिस अंदाज में आलमी दुनिया की तरफ से दबाव आना चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन मार्का हक के बाद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री जो डोमेन था वो भारत से कहीं आगे निकल गया और दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई। अब जो मादी में तो जो हुआ वो तो जो हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर अपने कार्ड्स को अच्छे अंदाज में प्ले करे और ये हम डिटर्मिन करवा दें कि सियासी, सिफारती, इखलाकी से बढ़कर भी हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा हौसला, ज़रा सब्र। 100 साल के बाद हांगकांग हासिल किया चीन ने और ताइवान के ऊपर, बावजूद इसके कि वो अब एक डिक्लेयर्ड सुपर पावर है और किसी और की जानिब से ये डिक्लेरेशन नहीं आई, बल्कि ये डिक्लेरेशन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना जाके ये दी थी। तो इसका मतलब है कि फिर तो उनको फौरन ताइवान पे कब्जा कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हौसला करके, ठंडी करके खाने के आदी हैं और मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया आइसोलेशन का शिकार है इस टाइम पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपको पता ही है कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ आवाजें बुलंद हो चुकी हैं और कॉकरोच जनता, कुछ ही अरसे की बात है कि मुझे मोदी सरकार मेहमान नजर आती है।
साथ ही साथ इंटरनल उनके जो एक क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, 33 आज़ादी की ऑनगोइंग मूवमेंट्स हैं, और साथ ही साथ एक्सटर्नल दबाव ये हैं कि दुनिया अब जो पहले खामोश थी, जो 5 अगस्त 2019 से पहले वो कश्मीर पे कभी बात नहीं करती थी, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बातें हुआ करती थी, लेकिन अब वो दुनिया थोड़ा थोड़ा ये देखना शुरू हो गई है कि भारत के जो चीरादस्तियां हैं, जो जालमाना कार्रवाइयां हैं, टाडा पोटा और स्पेशल पावर एक्ट जैसे काले कवानीन हैं, वो अब लोगों को पसंद नहीं आ रहे, एंड द वर्ल्ड मीडिया हैज स्टार्टेड टॉकिंग अगेंस्ट इंडिया। दिस इज अ गुड थिंग अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए एक चीज अच्छी ये भी है कि पाकिस्तान एंजॉयज गुड रिलेशन। अगर हम भारत के अंदर नौजवानों की बात करें, हम जेन ज़ी की बात करें, तो जेन ज़ी को भी होश आ गया है और मोदी सरकार जो है वो खासी खतरे में नजर आ रही है। डिटेल में इस पर बात करेंगे। नसीर वाग़ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वाग़ साहब, 2019 से ये सब कुछ नहीं हो रहा, ये 1947 से हम देख रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, लेकिन सर इन सालों में आप कश्मीर को कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि कश्मीरियों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और जो पाकिस्तान की मेहनत है वो यकीनन रंग लाएगी, और कश्मीर को, वाकई कश्मीरियों को, कश्मीर को उसका हक ज़रूर मिलेगा? क्या हम ये बात नहीं सोचेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल इस कश्मीर में हो रही है ये पैदा क्यों हुई? दरअसल पाको हिंद की तकसीम के वक्त अंग्रेज़ एक ऐसा शोशा छोड़ गया, एक ऐसी चिंगारी लगा गया कि दोनों ममालिक सारी ज़िंदगी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे। बात यह है कि मेरे नज़दीक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। अच्छा। ये मकबूजा कश्मीर तो कहा जा सकता है जिस पे भारत ने कब्जा कर रखा है। देखिए डिस्प्यूटेड क्यों नहीं है, वहाँ इस वक्त जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, अच्छा वो क्यों हो रहा है? सबसे पहले दुनिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि वहाँ नौजवान पैलेट्स के जरिए अंधे हो गए, इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, वहाँ इन्होंने अपनी पुलिस, रेंजर्स और भारतीय अफवाज वहाँ पे डिप्यूट की हुई हैं लोगों को मारने के लिए। अच्छा ये सूरत हाल क्यों पेश आई, इसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी थी? उसकी वजह ये थी कि हर कश्मीरी का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। भारत सिर्फ ये चाहता है कि ये पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं? भाई पूरी दुनिया का एक बड़ा खुला, एक बेहतरीन एक तरीक़ाकार है, एक कानून है कि कोई मुल्क ये जिस तरह की ये टेरिटरीज हैं वो जिसके साथ रहना चाहते हैं हक राय दही आप उनको दे दें, उनको हक दे दें। वो वोट के जरिए अगर भारत के साथ रहना चाहते हैं तो भाई रह लें। अगर वो पाकिस्तान 2019 से अब तक मुसलसल कोशिश हो रही है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको भी तब्दील किया जाए। आप ये एक देखें कि उन्होंने जिस तरह आइन का आर्टिकल 370 और 35A तब्दील किया है, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भारत के ख्याल में ये था कि जब हम ये काम कर लेंगे तो कश्मीरी आराम से बैठ जाएंगे, लो जी अब तो अमेंडमेंट हो गई, अब तो उनके आइन में हमारी हैसियत ही ख़त्म हुई। लेकिन देख लें एक मिनट भी कश्मीरियों ने चैन नहीं लिया, और किस तरह उन्होंने भारतीय हुकूमत का नाक में दम कर रखा है कि वो किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं रहना चाहते। ये इससे बड़ा आसान टेस्ट क्या हो सकता है कि अगर वो उनके साथ रहना चाहते हैं तो ना वहाँ इंटरनेट बंद हो, ना इतनी क्वालिटीज़ हो, ना गोलियां चलानी पड़ें, ना कर्फ्यू लगाने पड़ें। लाखों की तादाद में उन्होंने फौजी और पुलिस वाले वहाँ क्यों तैनात किए हुए हैं? सिर्फ उनकी आवाज़ दबाने के लिए। तो हैरान कौन। मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी इस बारे में कमज़ोर रही है। मैं तो कम से कम ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, इन्होंने पूरी दुनिया में जिस तरह कश्मीर का मसला उठाना चाहिए था शायद हम नहीं उठा सके। मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूं, और इंटरनेशनल लेवल पे हमें हर फोरम पे कश्मीर की आवाज़ जिस तरह उठानी चाहिए थी शायद हम नहीं उठा सके। चलें इसे दूसरे पैनलिस्ट जो हैं वो अग्री करते हैं या नहीं, ये सवाल छोड़े जाती हूँ। अभी ब्रेक पर जाने नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो यही सवाल रखूंगी और दूसरा आलमी ज़मीर के बारे में भी हम बात करेंगे कि यौम इस्तेहसाल तो हम मना रहे हैं, लेकिन इस इस्तेहसाल पर दुनिया ने क्या रद्द अमल दिया और क्या रद्द अमल उसे देना चाहिए था, इस पर पैनल की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज है 5 अगस्त और आज हम यौम इस्तेहसाल के तौर पर ये दिन मना रहे हैं क्योंकि कश्मीर में 2019 5 अगस्त में इस्तेहसाल हुआ। कश्मीरियों का एक बार फिर से उसी की याद को आज ताज़ा कर रहे हैं और पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आलमी बरादरी के हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि आखिर आलमी बरादरी खामोश क्यों है और क्या आप समझते हैं कि आलमी बरादरी की खामोशी ने ही इस मसले को मज़ीद पेचीदा भी बना दिया? और फिर सर वो सवाल जो मैं छोड़े गई थी कि पाकिस्तान ने क्या वाकई हर फोरम पर जिस तरह से ये मुकदमा लड़ना चाहिए ये मुकदमा लड़ा है और खामोशी को तोड़ने के लिए आलमी बरादरी के लिए क्या ठोस इकदाम हैं जो पाकिस्तान ने किए हैं या आप समझते हैं कि अभी करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जवेरिया कि पाकिस्तान में जब कश्मीर कमेटी बनाते हैं जी, that is just a lip service. You need to have a very good politician with lot of communication skills, having a total knowledge of Kashmiri issue. और इसके साथ हमें अच्छे जो है वो सेनेटर्स विद कश्मीर के लोग जो कि उनके कम्युनिकेशन स्किल हैं या जो इंग्लैंड में हो कहीं हो, दैट टीम शुड गो अब्रॉड एंड दे मस्ट हाईलाइट जो खास तौर पे इंग्लैंड में जाए जिनका अनफिनिश्ड एजेंडा है, दोज हु क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम जाते हुए। एंड आई स्टिल रिमेंबर ऑनेस्टली 1947 में जब ये तकसीम हुआ कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना बाबा कौम जो थे रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कहते थे कि कश्मीर इज इन माई पॉकेट। ही वाज सो श्योर अबाउट इट कश्मीर और एनीथिंग। द ओनली प्रॉब्लम व्हाई ही एक्सेप्टेड 1947, ही न्यू, डॉक्टर उनको बता दिया हुआ था कि हिज हेल्थ इज नॉट गुड और उनका लिमिटेड टाइम है, तो ही वांटेड कि अपनी जिंदगी में पाकिस्तान बना लें। आई विश अगर वो 1-2 साल और जिंदगी उनकी होती, अल्लाह उनको देता, तो कश्मीर कुड हैव बीन सॉल्व्ड। उसके बाद जान के उन्होंने इस तरीके से तकसीम की कि फिरोजपुर जो कि पंजाब डोमिनेटेड एरिया था वहां पर वो भी इंडिया को दे दिया, जहां से सारी सप्लाई लाइन जाती है कश्मीर के लिए। अब्दुल्ला कोल को पता है, ही नोज एवरीथिंग। उसके बाद जिस तरीके से हमें करना चाहिए हमने उस तरह से नहीं किया। वी हैव टू वेरी प्रोएक्टिव। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो है ये OSCE जो हमारी है, ये ऑनेस्टली इतनी वीक हो चुकी है आज जो कि मुसलमानों के साथ हो रहा है। वेरी OSCE, चाहे वो आप पैलेस्टाइन में देख लें, ईरान में देख लें, व्हाट एंड कश्मीर में देख लें, वेयरएवर यू सी व्हाट हैपेंड इन इराक, व्हाट हैपेंड इन लीबिया, सीरिया, बिकॉज यू हैव टू बी यूनाइटेड। अगर आप ये 7 कंट्रीज अपनी ताकत नहीं मनवा सकते तो देन फॉरगेट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको अभी भी वक्त है कि देखें, ठीक है, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन है, जनरल असेंबली है, बाकी मालिक दे स्पीक मोर देन आर OSCE, वहां से बात बुलंद होनी चाहिए। दैट इज राइट फॉरम। ये एटलीस्ट अपने इस्लामिक कंट्रीज का इंटरेस्ट लुकआउट करें। ईरान में क्या हो रहा है आपके सामने, बट कहीं आपने कोई एक मौके पे OSCE की स्टेटमेंट सुनी? तो दीज आर द पिटफॉल्स वी नीड टू ओवरकम। अगर हमने अपने को स्ट्रॉन्ग करना है तो रिसोर्सेज ऑफ इस्लामिक कंट्री जो गल्फ स्टेट के हैं और मैन पावर, टेक्नोलॉजी हम लोग की तुर्की है कि हमारी, इट हैज टू बी कंबाइंड टुगेदर टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इस्लामिक कंट्री। ओनली देन वी कैन बी शो आवर वॉइस टू एवरीवेयर इन नी कैन कॉल इट कि नाउ इस्लामिक कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कांट टेक वे टचिंग दैट। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, आप अग्री करते हैं ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू से? OIC का किरदार किस तरह से आप देख रहे हैं? जब तक मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे तो दुनिया में तो मुसलमानों का फिर यही हाल होगा जो हम देख रहे हैं। देखिए, ब्रिगेड साहब ने, नसीम साहब ने, दोनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बिल्कुल सही कहा। हमें जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया, ना हम अपने कर्जे माफ करवा सके। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ओकेजन्स थे जिसके अंदर हम अपने कर्जे माफ करवा सकते थे। जैसे 9/11 के बाद पाकिस्तान जब एक वॉर ऑन टेरर के खिलाफ खड़ा हुआ, दैट वाज द राइट टाइम। और मिस्र ने जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे अपने कर्जे राइट ऑफ करा दिए थे और आज आप देखें उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई। इसी तरीके से दुनिया में दीगर ममालिक ने फायदा उठाया। पाकिस्तान को ये मौका बार बार आया। 2025 की जंग के ऊपर भी पाकिस्तान के लिए कहा गया कि जी हम
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मसला कश्मीर हल करूंगा, और उसके बाद उन्होंने एक लंबी खामोशी तारी कर ली। अब देखना यह है कि अब जो ईरान और जो अमेरिका की मीडिएशन थी, उस टाइम पे भी हम अपने कर्जे भी और कश्मीर का मसला कम से कम और कुछ नहीं तो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन पे तो ला सकते थे, लेकिन वो हमारे से नहीं हुआ। देखें अब जो इसके अंदर काम करने वाला है, देखें कहाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इस टाइम पे जो लिप सर्विस है उससे काम नहीं बनेगा। ये तकरीर, तहरीर और सियासी तदबीर से नहीं, बल्कि ये एक बड़ी हिकमत अमली से किरदार अदा करना पड़ेगा। अब जो इंडिया है वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर है, और खास तौर पे देखें सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, अगर हमारा डिफेंस डील है और अभी यमन के मामले पे हमने एक मजबूत किरदार अदा किया हौतियों के ऊपर, तो फिर अब मेरे ख्याल में सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो इंडिया पे प्रेशराइज करे और उनको कहे कि ये मकबूजा वादी का जो मामला है वो उसको आप हल करें। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब का मुझे याद पता नहीं पड़ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि $82 बिलियन का उनका एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर अंबानी ने या अडानी ने आके ये कहा था कि मेजर चंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल गो टू कश्मीर। अब ये देखना है कि इस सारे के अंदर G7 कॉन्फ्रेंस भी वहां हो जाती है और दुनिया कुछ भी नहीं बोलती कि जी ये तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मैं लफ्ज डिस्प्यूटेड दुनिया के लिए बोल रहा हूं, मैं तो उसको हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा गर्दानता हूं। दूसरा एक काम बड़ा अहम है करने वाला, और वो है एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट। जो एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट वल्लभ भाई पटेल ने लहराया था और नेहरू जब गया था, तो उस टाइम पे फोरेंसिक होता है, बकायदा यूनाइटेड नेशन का एक रूल है, और आज तक मेरी इतलात के मुताबिक वो फोरेंसिक डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया गया और फोरेंसिक के लिए, इस वजह से क्योंकि वो 2 नंबर है। और अगर ये 2 नंबर साबित हो जाता है, पाकिस्तान शुड अर्ज ऑन इट कि जनाब आपको ये फोरेंसिक डॉक्यूमेंट करवाएं, इस डॉक्यूमेंट को हम फोरेंसिक चाहते हैं। तीसरी चीज जो बड़ी अहम है वो अमेरिका की चाल है। अमेरिका ये जो अब सारा खेल खेल रहा है, वो चाहता है ना इंडिया का रहे, ना पाकिस्तान का रहे, ना चीन का रहे, बल्कि एक आजाद रियासत के तौर पर सामने आए, ताकि अमेरिकन फोर्सेस इन द शेप ऑफ यूनाइटेड नेशन वो आके बैठ जाएं और 4 न्यूक्लियर कंट्रीज रूस, चीन, पाकिस्तान और चीन के ऊपर और इंडिया के ऊपर अपना धाक जमाए रखें और अपना धंधा चलाए रखें। बिल्कुल ठीक है। वाक़ई साहब, दोनों हमारे पैनलिस्ट ने अग्री किया आपकी बात पे। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, कौन कौन सी ऐसे मौके थे जो पाकिस्तान ने गंवा दिए, या कौन से मज़ीद मौके ऐसे आने हैं जिसे पाकिस्तान को अवेल करने की ज़रूरत है? कहाँ पे लैक किया हमने? देखें, अभी हाल ही में जब ट्रंप ने ये बात की, जब ईरान का और USA का आपस में इतना बड़ा एक सिलसिला चल रहा था और पाकिस्तान उसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था, तो जब ट्रंप ने ये कहा कि जी ये पहले ये वाला मसला हल कर लें, तो उसके बाद भाई वाई उसके बाद क्या वहाँ ये नहीं कहा जा सकता था कि देखिए हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ये एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है, एक बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा है। जनाब इज्जत माब ट्रंप साहब, आप ये मसला हल कर लें, ईरान और आपकी जंग के लिए तो हम लगे ही हुए हैं। लेकिन देखें, उन्होंने एक तवील वक्त गुजार दिया और सिर्फ एक लिपसिंग उनकी, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लिप सर्विस दे दी। तो बात यह है, पाकिस्तान के साथ साथ जनूबी एशिया में भी अमन का मामला है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। यकीनी तौर पर अगर हम लोग ये सोचें ना, जैसे आपने शुरू में कहा कि जी बाकी दुनिया, भाई बाकी दुनिया को क्या तकलीफ है? तकलीफ है पाकिस्तान को, और हर मुसलमान को इस चीज की तकलीफ होनी चाहिए। अभी जैसे देखें ना, सऊदी अरब के साथ भारत के बड़े इकोनॉमी के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या सऊदी अरब उनको ये नहीं कह सकता कि आपके लाखों भारतीय जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं और इतने करोड़ों डॉलर सऊदी अरब से, आप पहले मसला कश्मीर हल करें पाकिस्तान के साथ बैठ के? देखिए, इस्लाम में तमाम मुसलमान एक हैं, यकजा हैं। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे हिस्से को तकलीफ होती है। आप मुझे बताइए कि तकलीफ हमें हो तो लंदन को क्या होगा, USA को क्या तकलीफ होगी, रशिया को क्यों होगी, चाइना को क्यों तकलीफ होगी? और भाई तकलीफ हमारी है और महसूस वो करें। ऐसा दुनिया में कभी हुआ है? हमारी तकलीफ, उसका हल भी हमने करना है, हर फोरम पे खड़े होकर। हमसे मुराद तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक, यस, गुड करेक्शन, तमाम
तमाम मुस्लिम ममालिक का ये काम है कि वो मिलजुल कर इस मसले को हल करें। ये कहें कि कोई और मुल्क हमारी मदद करने को आएगा, कभी नहीं, सोचना भी ये नहीं। ये हमारा काम है कि जहां हमें मौका मिले, OIC हो, कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, वहां पे हमें मसला कश्मीर को बिल्कुल पेश करना चाहिए। मैं कहता हूं कोई इररेलेवेंट कॉन्फ्रेंस भी हो ना, वहां भी आप मसला कश्मीर को खड़ा कर दें। और फिर अब सिफारती लिहाज से जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, यकीनन पाकिस्तान का मकाम वो पहले जैसा नहीं रहा। पाकिस्तान को अपने मुतालिबात भी सामने रखना है कि अगर हम आपके साथ किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं या अमेरिका बड़ा ट्रस्ट कर रहा है, तो फिर हमें भी अपने मुतालिबात जो हमारे हैं वो हमें सामने रखने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और जो हम पूरी आलमी बरादरी की अगर हम बात करें तो आलमी जो रिपोर्ट्स हैं कश्मीर के हवाले से, उनका स्टेटस क्या कहता है, आलमी कवानीन इस हवाले से क्या कहते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे और पैनल की राय जानेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस दुनिया में जब जुल्म मुसलमानों पे किया जाता है तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ना सिर्फ खामोश रहती है बल्कि जो आलमी कवानीन हैं वो भी ऐसा लगता है कि उन पर अमल दरामद बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि आलमी कवानीन क्या सिर्फ ताकतवरों के लिए बनाए जाते हैं? आलमी कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? और अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ स्टैंड करती है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें क्या बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा का कोई स्टेटस नहीं रहा और अक़वाम मुत्तहिदा को अब ख़त्म हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए? जवेदिया, मुझे ये बताएं, ये जो अभी ईरान में हो रहा है, अमेरिका जो कर रहे हैं जी, क्या इट हैज द टेस्टेड अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? खैर नहीं है। He said कि I don't, मेरा अपना कानून है, that means my right. United Nations is almost redundant. It is only meant for weak countries. जिनके बाजू मरोड़ने होंगे, हमारे जैसे मुसलमान जो आपस में इकट्ठे नहीं हैं, जी जी, ऐसे मुल्कों के लिए कवानीन है। वहाँ पर आप कवानीन बनाते हैं, उनको जो मर्जी कर लें। इराक के अंदर आपने बना दिया, लिबिया में चले गए, उसके बाद पैलेस्टाइन में इजराइल क्या कर रहा है? आप अभी तक वो जो बनाए पीस बोर्ड का और जो मुआहिदा उसको फॉलो नहीं कर रहा। नोबडी पुश्ड अबाउट इट एंड वेयर द वॉइस ऑफ खलीजी मालिक की नहीं है। तो इसलिए हमारा अपना कसूर है। और यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज ने बात की हुई है कि 2 नेशन स्टेट की चाहिए, ये होना चाहिए। नथिंग इज हैपनिंग। और ट्रम्प ने कहा कि इट इज रिडंडेंट, आई डोंट एग्री, आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये 19 आपको याद होगा 1919 में लीग ऑफ नेशन बनी थी इसी तरह, इसी की चीज के लिए। 1945 में फिर बनी, ये बन गई यूनाइटेड नेशन। क्या उसका फायदा? कोई एक बता दे इन्होंने काम किया हो। सिर्फ जो जैसे ये लिबिया, सीरिया, इराक, वहां के लिए जब सब मिलके इकट्ठे गए, जाकर उनको ऑयल गैस पे कब्जे कर लिए, दैट्स ऑल। ब्रिगेडियर साहब, एक पीस बोर्ड भी बना था और ऐसा कयास आराइयां हो रही थी कि शायद वो रिप्लेस करे यूनाइटेड नेशंस को। तो वो बस यही अब आपके सामने देख लें, वेनेजुएला में प्रेसिडेंट ट्रम्प चले गए, एक मुल्क के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के अरेस्ट करके बेगम को ले आए और वहां कब्जा कर लिया जी। तो व्हाट इज दिस? ये कोई कानून है? जैसे जंगल का कानून है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए पाकिस्तान जैसे हमने बोले इस्लामिक वाले के लिए इट्स अ बिग लेसन, बी स्ट्रॉन्ग। हमने इंडिया को बता दिया क्यों पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। वी हैव टोल्ड फील्ड मार्शल क्यों इज्जत हो रही है। ही टोल्ड द वर्ल्ड nobody can look toward us, we will take off their eyes, that's what। इसीलिए हमारी इज्जत है दुनिया में। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इतने बड़े मुल्क 3 दिन में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। so nobody will come and defend you, आपने अपने को खुद डिफेंड करना है। ये अगर आप इस पे, ये मैं कह रहा हूँ, ये इस्लामिक वाले का आप सोच लें, अगर खलीजी वाले और ईरान अगर ये समझ लें और ये इकट्ठे हो जाएं, इजराइल की मजाल नहीं कि ग्रेटर इजराइल बनाए, ना उसकी मजाल है कि पैलेस्टाइन में कुछ करे। द ओनली थिंग इज, ये ईरान ने बता दिया ना कि ये ईरान कितनी मिलिट्री पावर री इमर्ज हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। ये एग्जांपल है। ये अभी री इमर्ज आपकी ये थोड़े डायनामिक्स होने हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। ये करेंगे तो सर्वाइव करेंगे, वरना 1 by 1 ये इसी तरह हम बिखरते रहेंगे, नुकसान होता है। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, इस्लामी ममालिक का जो मर्जर है, इत्तेहाद है, क्या बनता देख रहे हैं? कितना ज़रूरी है और आखिर क्या रुकावट है कि इत्तेहाद बन नहीं पा रहा? बड़ा जो है अहम सवाल है कि भाई इत्तेहाद कैसे बनेगा अगर आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल ले लेंगे। इनमें से कई ऐसे ममालिक हैं
जो आपको पता है जो जिनकी सिक्योरिटी अभी इजराइल के हाथ में है। तो अब मतलब आप क्या बात कर रहे हैं ना, अगर आप ब्रिगेडियर साहब ने तो बात की कि जी वो कोई इजाजत होती, इसराइल की मजाल नहीं थी। इजराइल होता तो बात होती ना, अगर मुसलमान ममालिक एक होते तो इजराइल का बाप भी नहीं जो है वो आ सकता था यहाँ। लेकिन मसला ये है कि हम तो हमेशा से, हमें तो आपको पता है ना, घर के भेदी जो था वो हमेशा से लंका ढाता रहा। हमारे यहाँ तो गद्दारों की कमी कोई नहीं है। हमारे यहाँ तो सच्ची जो बात है कि गद्दारों ने तो मरवाए हैं मुसलमान। तो जब 12 सदियां मुसलमानों के हाथों में तलवारें थीं और रातों को सजदे में उनकी पेशानियां थीं, तो आपने पूरी दुनिया का फतह किया हुआ था। जब आपने अपने आप को अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश की और कहा कि नहीं नहीं हम सॉफ्ट इमेज देंगे, सॉफ्ट इमेज का आप देख लें कि क्या हुआ। पाकिस्तान को ही देख लें, जब से हार्ड स्टेट के ऊपर हम गए हैं, फील्ड मार्शल साहब ने जो नया विजन दिया, हार्ड स्टेट के बाद आप देखें कि पाकिस्तान आज दुनिया में कहां खड़ा है और सॉफ्ट स्टेट्स की क्या हालत कर देते हैं। तो मकसद यहाँ ये कहने का है कि इस टाइम पे आपका इत्तेहाद कभी भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ क्लेमेंट बहुत सारे हैं। तुर्किया कहता है खिलाफत मैं ले लूं, सऊदी अरब जो है पैसे भी हैं, हरमैन भी मौजूद हैं, इसलिए उनका राइट है। पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, तो पाकिस्तान समझता है ये मेरा राइट है। ईरान कहता है कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावरों को घुटने पे लाया हूं, मैं क्यों ना हो जाऊं। ये हम जो मामलात है ना, हमारे OIC जैसी जगह पे तो आप इकट्ठे नहीं रह पाए। आप देखिए, असल मसला यह है कि जो आगे बढ़कर किरदार अदा करेगा, दुनिया फातिहीन की होती है। दुनिया लक फेवर द बोल्ड, जो बहादुर होता है उसके साथ दुनिया खड़ी हो जाया करती है, बुज़दिल के साथ दुनिया नहीं खड़ी होती। पाकिस्तान को आगे ये स्टेप फॉरवर्ड लेना है और ये लिया। जब लिया तो आप देखें कि पाकिस्तान की इज्जत में और कद काठ में कैसा इजाफा हुआ। अच्छा, अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूंगी, जिस सिक्योरिटी की आपने बात की कि जिन ममालिक को सिक्योरिटी कोई और प्रोवाइड करा है, लेकिन सिक्योरिटी का तो सारा जो चेहरा था वो बेनकाब हो गया कि किस तरह की सिक्योरिटी थी। वो अम्ब्रेला जो है उसमें तो छेद थे, तो क्या अब ये सोचेंगे कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं हमें कर सकते? अब तो जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, इतना नुकसान उठा लिया और पता चल गया कि जो थोड़े बहुत उनके मिसाइल थे वो भी उन्होंने इजराइल भिजवा दिए। अब तो उनको समझ आ गई। देखे ना, तभी तो ये पांचा पलटा कैसे, जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अब डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि अभी जो मामला है अगर नहीं हुआ तो GCC मुल्कों के अंदर ना आपके अड्डे रहेंगे और ना आपके साथ हम दिफाई मुआहदात के अंदर जाएंगे। दिस वॉर हैज टू बी, इसको इट हैज टू कम टू एन एंड। मसला ये है कि उन्होंने इनका ब्लफ कॉल कर दिया। यही अरब दुनिया जिसको वो दबाना चाहते थे, आज वो खड़े हो गए। किस बुनियाद पे? कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान उनकी बैक पे मौजूद है। ये है असल बात। क्योंकि असल मसला यह है कि जो मुसलमानों का इशू आपको पता है इत्तेहाद की तरफ, और इसी वजह से कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को इत्तेहाद वो मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। तफरके में तो हम पड़े हुए हैं, हम तो। और फिर ये भी कहा गया कि तुम कुरान की आयतों को झुटलाओगे। काफिर तो मानता ही नहीं है कुरान को, तो मानता जो मुसलमान है वो झुटलाता है कि यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, बनाओ दोस्त, फिर मजे करो। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, हमेशा जब आपसे बात होती है तो आपने हमेशा इत्तेहाद की बात की, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की बात की, बड़ा नागुज़ीर है। हमें ऐसा लग रहा था कि जो सिचुएशन गज़ा में हुई है, उसके बाद ईरान में है, तो शायद हम एक इत्तेहाद बनता हुआ देखें, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अग्रीमेंट हो और एक हमें इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आए। लेकिन सर फिर वो चीज़ जो है वो गायब हो जाती है जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है। कितना नागुज़ीर है ये इत्तेहाद, और आखिर ये इत्तेहाद बनता क्यों नहीं है? एक तो बार बार ब्रिगेडियर साहब ने ना एक जिक्र किया जंगल का कानून। जी, जंगल में तो कोई कानून होता है ना, कोई कानून होगा ना। ओ भाई, दुनिया के अंदर इन लोगों का कोई कानून नहीं है, USA का कोई कानून नहीं है। वो जिसको चाहता है उठा लेता है, जिसको चाहता है बर्बाद कर देता है। तो ये तो ला कानूनियत है, लॉ खुद लिखा जाता है। ओ यस, बात ये है। आप एक बात देखें, यूनाइटेड नेशंस की करारदादें, ह्यूमन राइट्स के लेटर्स कागजों के अंदर पड़े हुए हैं। कौन
कौन उन पे अमल दरामद कराएगा? अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, कौमें बहादुर लोगों के साथ खड़ी होती हैं, बुज़दिलों के साथ नहीं खड़ी होती, जिसकी वाज़े मिसाल अभी जो पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी दिखाई। आप देखें हमारा ग्राफ दुनिया में कहाँ पहुंचा। अगर हम सारी ज़िंदगी दूसरों की तरफ देखते रहेंगे और उनकी मदद का इंतज़ार करते रहेंगे तो कौमें हमें क्रश कर देंगी। आज मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। आपको याद होगा 1971 में, मुझे एग्जैक्ट, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने यहाँ पर एक समिट कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें शाह फैसल भी आए लाहौर में। आप मुझे बताइए उसके बाद उनका क्या हाल हुआ? सारी दुनिया ने देखा। आज तक जिसने मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की वो खत्म कर दिया गया। हाँ जी। अफसोस की बात तो ये है, जब तक मुसलमानों ने खुद इकट्ठे नहीं ना होना, अगर ये कहे ना कि कोई इनको आके इकट्ठा करेगा, हाँ नहीं, बात ये है कि इनको एक वक्त याद आएगा जब यही यहूदो निसार इनको खुदा न करे पांव तले कुचलेंगे, रौंदेंगे, फिर इनकी आंखें खुलेगी और अल्लाह के कानून के मुताबिक इनको याद आएगा कि वो जो उसने कहा ना, आपस में तफर्रका बाजी खत्म करो और एक रस्सी पकड़ के एक भाइयों की तरह इकट्ठे रहो। आज अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, आप देखें दुनिया की कितनी दौलत मुसलमानों की अमेरिका में पड़ी है, यूके में पड़ी है, स्विट्जरलैंड में पड़ी है। अफसोस की बात तो ये है कि कोई मुसलमान मुल्क दूसरे के लिए कुर्बानी देने को जरा भी तैयार नहीं है, बात भी नहीं करता। अपने वो कहता है मैं ठीक रहूं, मेरी दौलत ठीक रहे, मुझे कुछ ना कहिएगा, बाकी जो मर्जी करें। लेकिन वाक़ई साहब, ये आग जो अभी हमारे पड़ोसियों की तरफ लगी है, ये आग का रुख हमारी तरफ बस हुआ ही चाहता है। यकीनन ईरान की तरफ अमेरिका का आना ये इतना बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। वो जो बार बार कई लोग तो मजाक में कहते हैं ना कि देखते हैं अगली बारी किसकी है, पता सबको है, वो सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कौन कितने पानी में है, हमें कितना रिएक्शन मिलता है। उन्होंने ईरान को देख लिया, रिएक्शन आया है ना, तो फिर मिन्नतें तरले करके पाकिस्तान को दरमियान में डाल के उनका खुदा का वास्ता। और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। कश्मीर के हवाले से भी भरपूर बात होनी चाहिए, अपने कर्जों के हवाले से भी बात होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। इस चंक को हम कंक्लूड करते हैं, बल्कि प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। यौम इस्तेसाल पे बात हो रही थी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आप तीनों से शॉर्ट आंसर लेना चाहूँगी। सर, कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर की जो कुर्बानियाँ हैं, जो कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हैं, आखिर ये कब ख़त्म होंगी और कश्मीरियों की कितनी नस्लें हैं जिन्हें आज़ादी का इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, मैं आज पर्सनली फील कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों को हमें इनकरेज करना, वेरी फ्रैंक, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक, कि उनको आर्म स्ट्रगल के लिए इनकरेज करना चाहिए। इट इज देयर राइट। यूनाइटेड नेशन अलाउ करता है, जो मुल्क जबरदस्ती काबज होता है वो आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर इंडिया खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सोन को सपोर्ट कर रहे हैं, वी हैव ऑल द राइट टू सपोर्ट कश्मीरी। और ये आई थिंक यही इनका इलाज है, तभी ये हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन करना है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, यही सवाल आपके सामने, कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं कब खत्म होंगी और क्या करना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो ये है कि अगर बलूचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, कोयटा पे, पेशावर पे, लाहौर के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर कहीं अगर हमला हो तो क्या हम सियासी सिफारती इखलाकी मदद करेंगे? बस वही जो हम यहाँ करेंगे वही वहाँ करेंगे, बस बात खत्म। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, कंक्लूड कीजिए। देखिए, बात ये है, बड़ी वाज़ेह और खुली सी बात है, जो कश्मीरी हैं इस वक्त, जिसको फिर मैं हम कहेंगे मकबूजा कश्मीर, जी, बार बार कह रहा हूँ, ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। वहाँ पे जब तक पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करेगा, उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। आप ये देखिए कि कश्मीरियों की अपनी हुकूमत ही नहीं है वहाँ। बहुत शुक्रिया नसीर वाक़ई साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।